اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. مسلم پرسنل لا پر اپنی کچھ خواتین کا حملہ فکری ارتداد کا نتیجہ. مولانا الیاس ندوی مدرسے فرقانیہ شرور میں عام اجلاس. بیماری اور غربت نے خاتون کو خودکشی کرنے پر کیا مجبور, عورت ہلاک. بھٹکل انجمن کے جاب میلے میں قریب 800 سے زائد طلبہ نے قسمت آزمائی, 200 کا ہوا انتخاب. RSS کی BJP کو نصیحت, UP اسمبلی انتخابات میں اٹھایا جائے رام مندر کا مدعا. سری نگر میں کمسن لڑکے کے جنازے پر سیکورٹی فورسز کی شیلنگ, 2 درجن زخمی. لیبیا کے ساحل پر تارکین وطن کی 2 کشتیاں ڈوب گئیں, 2 ہلاک, 120 لاپتہ. کیا آپ اپنے نئے گھر کے لیے ڈائننگ ٹیبل کھوج رہے ہیں؟ صوفہ سیٹ, ٹی ٹیبل, کیبنٹ الماریوں سے اپنا نیا گھر سجانا چاہتے ہیں تو جلدی کریں. مدینہ کالونی میں واقع علی ایجوکیشنل بک ہاؤس میں آپ کو رعایتی داموں کے ساتھ بہترین اور عمدہ کوالٹی کے صوفہ سیٹ, ڈائننگ ٹیبل, کیبنٹ الماریاں, ٹی ٹیبل اور نت نئے ڈیزائن کے آپ کے پسند کے فرنیچر دستیاب ہیں. جلدی کیجیے, محدود اسٹاک ہے. رابطے کے لیے اس نمبر کا استعمال کریں 8150939399. ناظرین اب خبریں تفصیل سے. بھٹکل. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اسلام کے مضبوط قلعوں میں اپنے ہی لوگ قدغن لگانے پر تلے ہوئے ہیں. طلاق ثلاثہ ہو یا متبنہ یا وراثت کا مسئلہ, اس پر پہلے اعتراض کرنے والے اپنے ہی تھے جس کا استعمال دشمن اسلام کرتے ہیں. دراصل یہ سب کا سب فکری ارتداد اور تربیت میں کمی کا نتیجہ ہے. ان باتوں کا اظہار استاد جامعہ اسلامیہ جامع آباد بھٹکل و بانی و سیکریٹری مولانا ابوالحسن علی ندوی اکیڈمی بھٹکل مولانا الیاس جاگٹی ندوی نے کیا. وہ یہاں بروز جمعرات بزم مومنات ناخدا محلہ شرور کے زیر اہتمام منعقدہ تحفظ شریعت اجلاس سے خطاب فرما رہے تھے. مدرسے فرقانیہ شرور کے احاطے میں مذکورہ بالا عنوان سے منعقدہ اس اجلاس میں سینکڑوں کی تعداد میں موجود مرد و خواتین سے خطاب کرتے ہوئے مولانا موصوف نے مسلم پرسنل لا, طلاق ثلاثہ و دیگر اہم ترین مسائل پر تفصیلی گفتگو کی اور پھر پرسنل لا بورڈ کے قیام کے پیچھے اہم مقاصد کو اور مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کے قائد اور رہنماؤں کو ساتھ لے چلنے کی بات کرتے ہوئے مولانا نے دستخطی مہم میں بھرپور حصہ لینے کی اپیل کی اور کہا کہ دنیا میں اگر کہیں اپنی اسلامی شناخت اور شاعر اسلام کے بقا و تحفظ کے ساتھ مسلمان زندگی گزار رہا ہے تو وہ صرف ہندوستان کا ملک ہے. بصورت دیگر دنیا کے ایسے کئی ممالک جو بظاہر اسلامی کہلاتے ہیں مگر وہاں داڑھی رکھنا جرم, مدرسوں میں پڑھنا جرم ہو چکا ہے. سیکولرزم کے نام پر اسلامی و مذہبی شناختی چھین لی جا رہی ہے. مسلم پرسنل لا کے قیام کے مقاصد کی تفصیل رکھتے ہوئے مولانا موصوف نے سائرہ بانو کے معاملے سے لے کر حالیہ اب تک کے طلاق ثلاثہ تک کے معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے مولانا نے کہا کہ دراصل عورتوں کو مظلوم ثابت کر کے دشمنان اسلام یکساں سول کوڈ کے نفاذ کا راستہ ڈھونڈ رہی ہے. سپریم کورٹ کی جانب سے مسلم پرسنل لا بورڈ, حکومت اور لا کمیشن کو جو سوال نامے بھیجے گئے ہیں اس کا مسلم پرسنل لا کی جانب سے بیکاٹ کرتے ہوئے صاف کہہ دیا ہے کہ شاعر اسلام پر اٹھنے والے کسی سوال کا جواب نہیں دیں گے. اور چونکہ حریفوں کی جانب سے 50,000 خواتین کے ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے, اسی کے توڑ کے لیے ہندوستان بھر میں دستخطی مہم چلائی جا رہی ہے تاکہ عدالت میں ثابت کیا جا سکے کہ جو لوگ طلاق ثلاثہ کے ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کی تعداد سے کئی گنا زیادہ خواتین و حضرات اس کے مخالف میں ہیں. ملحوظ رہے کہ مولانا موصوف سے قبل مولانا محی الدین جیلانی صاحب نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا. آخر میں محتم جامعہ اسلامی جامع آباد بھٹکل مولانا مقبول کوبٹی ندوی نے اپنے صدارتی خطبے میں طلاق ثلاثہ پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اللہ کی جانب سے جو نظام قائم ہے وہ اللہ کی جانب سے عطا کردہ ہے. وہ اپنے بندوں کے جذبات, ان کے احساسات کو, ان کے دلوں کے حال کو جاننے والا ہے. وہی اللہ ہے جو ایک انسان کے برداشت کرنے کی طاقت, غصہ برداشت کرنے کی سخت کو جانتا ہے. کچھ لوگوں کو اعتراض ہے کہ مردوں کو جس طرح طلاق کا حق ہے ویسے ہی عورت کی جانب سے خلا لینے یا اس طرح کے جملے استعمال کرنے سے طلاق واقع ہو جانا چاہیے. مگر ہر انسان اس بات سے واقف ہے کہ عورت کتنی جلد باز ہوتی ہے. اگر یہ حق دے دیا جائے تو معاشرے میں میاں بیوی کا رشتہ ایک مذاق بن جائے گا اور ہر دن طلاقوں کی شرح میں اضافہ ہوگا, کیونکہ خاتون کی تخلیق ایسی ہوئی ہے. اگر مرد سے طلاق کا حق دیا گیا ہے تو اس کو دینے کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں اور پھر اس کو مکروہ بھی قرار دیا گیا. مولانا موصوف نے اس موقع پر کئی اہم ترین امور پر روشنی ڈالی. یاد رہے کہ جلسے کا آغاز مولانا بہاؤالدین ندوی کی تلاوت کلام پاک سے ہوا, جبکہ حذیفہ یمان ابن مولانا عبدالرزاق نے اپنی خوبصورت آواز میں نعت پیش کی. مولانا عبدالرزاق نے بھی اس موقع پر حالات کی نشاندہی کرنے والی ایک نظم پیش کی. نظامت کے فرائض مولانا اسماعیل نے انجام دی. دعائے کلمات پر جلسہ اپنے اختتام کو پہنچا.
कासरगोड, बीमारी और फिर साथ में गुर्बत ने एक औरत को यहाँ खुदकशी करने पर मजबूर कर दिया है। इस वाक़े की इत्तला 4 नवंबर जुमा की रोज़ शाम के वक्त मंजर आम पर आई है। खुदकशी करने वाले खातून की शनाख्त बेल्लूर की राजीव उम्र 60 की हैसियत से कर ली गई है। बताया जाता है कि राजीव का लड़का मामूल के मुताबिक यौमिया उजरत पर मजदूरी के लिए निकल पड़ा, लेकिन जब वो शाम के वक्त अपने घर वापस लौटा तो उसकी मां की लाश लटकी हुई हालत में मौजूद थी। कहा गया है कि वो दिल के किसी मर्ज में मुब्तला थी, जिसकी बिना पर इलाज की खातिर उसने सरकारी अस्पताल के कई चक्कर काटे और कई डॉक्टरों से इस सिलसिले में रब्ता किया तो डॉक्टरों ने कहा कि इसके इलाज के लिए सर्जरी करना ज़रूरी है, मगर राजीव के पास इतना पैसा नहीं था कि जिससे वो इलाज कर सके। इस बात को लेकर वो बेहद परेशान थी और दुखी रहती थी। दिल के अमराज के इलाज के लिए उसको 60,000 रुपये दरकार थे, जबकि हफ्तावारी इलाज के लिए मजीद हर हफ्ते 25,000 रुपये की ज़रूरत थी, मगर इसके पास हुकूमत की तरफ से मिलने वाली माहनामा 1200 पेंशन के अलावा आमदनी की कोई ज़राए नहीं थे। इन परेशानियों को देखते हुए उसने हुकूमत से कई बार मदद की अपील करते हुए अर्जी दाखिल की थी, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई मुस्बत जवाब नहीं मिल पाया। अब इसको अपने इलाज के लिए कोई चाराकार नज़र न आया। आखिरकार उसने अपनी ज़िंदगी के खात्मे का फैसला करते हुए अपने घर की छत से लटक कर खुदकशी कर ली। वाज़ेह है कि इसके शोहर विश्वनाथ का कुछ साल कबल इंतकाल हो गया था। अब उनके यहाँ यौमिया उजरत के अलावा मज़ीद कुछ आमदनी न थी। कासरगोड जनरल अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद 5 नवंबर शनिचर की सुबह को उसकी राजीव की लाश उसके अहल खाना के हवाले की गई है। भटकल, अंजुमन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी व मैनेजमेंट जॉब मेला 2016 में करीब 800 से ज़ायद तलबा ने शिरकत करते हुए अपनी किस्मत आजमाई। इसके साथ ये जॉब मेला अंजुमन की तारीख का तारीखी जॉब मेला रहा। फिक्र खबर के मुताबिक इस जॉब मेले में 20 से ज़ायद कंपनियों ने शिरकत की थी। अंजुमन आबाद के कैंपस में इस जॉब मेले का इनेकाद किया गया था। मंगलूर, हुबली, उडुपी, कारवार, उडुपी समेत पूरी रियासत कर्नाटक से तलबा ने शिरकत की। 800 तलबा में करीब 200 तलबा के मुंतखब होने की खबर मौसूल हुई है। तलबा ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि 20 के करीब कंपनियाँ रहने की वजह से अपने अपने पसंद की कंपनी का इंतखाब करने में आसानी रही। इन कंपनियों में काबिल ज़िक्र इन्फोसिस, माई किंगडम सिंगापुर, हिंदुजा ग्लोबल, कैनरा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और दीगर, प्राइम मोर प्राइवेट लिमिटेड, HR, IT ग्लोबल और दीगर कई सारी कंपनियां इसमें मौजूद थी। जॉब मेले के इफ्तिताई प्रोग्राम में हैंगी और स्क्रैम के MD प्रदीप पाई ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए तलबा से मुखातब हुए। मलूज़ है कि तिलावत कुरान पाक से इस मजलिस का इफ्तिताह हुआ था। डॉक्टर MA भावी कटे, प्रिंसिपल AITM ने इस्तकबालिया कलिमात पेश किए। अंजुमन इदारे के जनरल सेक्रेटरी जनाब इस्माइल सिद्दीक, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जनाब इसहाक शाहबंदरी, वाइस प्रिंसिपल पाला चंद्रा वगैरह इस मौके पर मौजूद थे। नई दिल्ली, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वक्तन फ़वक्तन मरकज़ की BJP हुकूमत और BJP की ज़ेर इख्तियार रियासतों को गाइडलाइन जारी करता रहता है। इसी ज़िम्ने में उत्तर प्रदेश में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए भी सिंह ने BJP को गाइडलाइन जारी किया है। सिंह ने कहा है कि BJP तरक्की के एजेंडे के साथ साथ राम मंदिर के इशू को भी अपने एजेंडे में शामिल करे। उसने मरकज़ की मोदी हुकूमत को कौमी तालीमी पॉलिसी भी तय करने को कहा है। बाखबर ज़राए के मुताबिक दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में RSS क़यादत की एक मीटिंग हुई, जिसमें BJP सदर अमित शाह समेत पार्टी के कई दीगर सीनियर लीडरान मौजूद थे। 1 घंटा तवील जारी इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश में होने वाले असेंबली इंतखाबात से मुतालिक BJP की हिकमत अमली पर खुसूसी तौर पर गौर व खोज किया गया। ज़राए के मुताबिक सिंह के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय और किशन गोपाल ने यूपी इलेक्शन में BJP की तैयारियों को लेकर जानकारी हासिल की, जिस पर उन्हें तरक्की के एजेंडा और कौमी सलामती से मुताल्लिक हुकूमत के ठोस इक़दामात के एजेंडे पर यूपी इलेक्शन लड़ने की मालूमात दी गई। इस पर RSS के लीडरों ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर का मुद्दा भी पार्टी के एजेंडे में शामिल किया जाए। कश्मीर, गरमाई दारुल-हुकूमत श्रीनगर में हफ्ता के रोज़ उस वक्त एक फ़ोटो जर्नलिस्ट समेत कम अज़ कम 2 दर्जन अफराद ज़ख्मी हो गए, जब सिक्योरिटी फोर्सेस रियासती पुलिस के एहलकारों ने कमसिन लड़के के जुलूस जनाजे पर आंसू गैस की शेलिंग कर दी। लोगों का इल्ज़ाम है कि 16 साल कमसिन कैसर सूफी साकिना शालीमार अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में ज़ेर हिरासत तशद्दुद की वजह से ज़ख्मी हो गया था। उसे बाद शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में दाखिल करा गया, जहाँ उसने गुज़िश्ता रात अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांसें ली। ताहम पुलिस ने इल्ज़ाम को कुल्ली तौर पर मुस्तरद करते हुए कहा कि कमसिन कैसर ने खुद ही कोई जहरीली शय खा ली थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। रिपोर्टों के मुताबिक कमसिन कैसर की मैयत को हफ्ते की सुबह शालीमार से अपने आबाई इलाके सफ़ाकुदल लाया गया। सफ़ाकुदल में जमा होने के बाद लोगों की एक बड़ी तादाद कैसर को सुपुर्द-ए-लहद करने के लिए जुलूस की सूरत में मज़ार शहदा ईदगाह की तरफ रवाना हुई। ताहम इलाके में पहले से तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस ने लोगों की ईदगाह की तरफ मार्च को रोकते हुए लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग कर दी, जिसके बाद तरफेन के माबेल झड़पें हुई, जिनमें कम अज़ कम 2 दर्जन अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं।
हैं। श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल के ज़राए ने बताया कि कम से कम 10 ज़ख्मियों को इलाज मुआवजे के लिए वहां लाया गया है। उन्होंने बताया कि सभी ज़ख्मियों की हालत मुस्तहकम है। झड़पों के दौरान उर्दू रोजनामा आफ्ताब से वाबस्ता फोटो जर्नलिस्ट गुलजार अहमद भी जख्मी हो गए हैं। रिपोर्टरों के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से आंसू गैस की शीलिंग के बावजूद लोगों की एक बड़ी तादाद मज़ार शुहदा पहुंचने में कामयाब हुई, जहां कैसर को सुपुर्द-ए-लहाद किया गया। इस दौरान पुलिस ने बताया कि 28 अक्टूबर को पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज की गई कि 16 साल कैसर हमीद साकिना ईदगाह हाल निशात 27 अक्टूबर को लापता हो गया। पुलिस ने बताया कि कैसर को गुमशुदगी की शिकायत दर्ज होने के एक रोज़ बाद ढूंढ निकाला गया और उसने मुबैना तौर पर जहर खा ली थी। उसकी गुज़िश्ता रात मौत हुई, जिसके बाद इलाके में बड़े पैमाने पर एहतिजाजी मुजाहरे भड़क उठे। सभी तस्वीरें शाये की गई हैं। तराबलस लीबिया के साहिल पर 2 कश्तियां डूबने से 2 अफराद हलाक, 29 को बचा लिया गया है, जबकि दीगर 120 अफराद ताहाल लापता हैं। खदशा जाहिर किया गया है कि ये तमाम अफराद डूबकर हलाक हो चुके हैं। शॉर्टलिस्ट सेमी ने बताया कि कश्ती पर सवार अफराद में से 29 को बचा लिया गया है, जबकि दीगर 120 अफराद हाल लापता हैं, जिनके बारे में ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि वो शायद हलाक हो चुके हैं। दूसरी कश्ती पर सवार अफराद में से 2 को बचाया जा सका है, जबकि 120 दीगर लापता हैं। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक माइग्रेशन हुकाम ने बताया कि लीबिया के साहिल पर 2 कश्तियों का हादसा पेश आया। इन कश्तियों पर सवार 239 से ज़ायद तारिकीन वतन डूब गए। इधर अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गुज़ीनों के इदारे UNHCR के तर्जुमान शार्टलिस्ट समी ने ज़राए अबलाग को अतालवी जजीरे लापिदोसारा पर लाए जाने वाले 2 बच जाने वाले तारिकीन वतन के बारे में खबर दी है और बताया फ़िलहाल कोई लाश नहीं निकाली जा सकी। तारिकीन वतन की बैनुल अक़वामी तंजीम के तर्जुमान लियोनार्ड डोयल का कहना था कि रवां साल बहरे रूम अबूर करने के लिए ख़तरनाक सफ़र करने वाले 4200 से ज़ायद तारिकीन वतन हलाक हो चुके हैं। इससे कबल अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया था कि 2016 में सफ़र करने वाले तारिकीन वतन के हवाले से ख़तरनाक तरीन साल हो सकता है। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, ख़लीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएँ। फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।